Namaskar to everyone. So today we are going to discuss about the basic principles of yoga therapy. And to understand the basic principles of yoga therapy, we have to first understand what is yoga, क्या है योग, क्योंकि and what is the purpose of what is basically yoga and therapy. Therapy, we know something which is related to the disease or the problem, health problem. Yoga, which can be used for the disease, is yoga therapy. Now, what is yoga? Yoga is yoga chitta vritti nirodha. So योग is to join, युज धातु से बना हुआ है, तो उसका अर्थ ये है कि किसी भी दो चीज़ को जोड़ना योग कहलाता है. चित्त, चित्त is nothing but your mind. Vrittis are the modifications of that same mind, and nirodha is inhibition or cessation of that. So yoga means, yoga is a science where there is an inhibition of the mental modifications or fluctuations, or you can say yoga is a science in which you basically learn how to control your mind, right? So whole yogic philosophy is divided into two parts. The first one is Pranasayam Yoga, second one is Bhavana Yoga. Now what is Pranasayam Yoga? The yogic path in which you learn to control your breath. Examples you can take: Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Kriya Yoga, Kundalini Yoga, anything. Then comes your Bhavana Yoga. Under Bhavana Yoga, भावना योग क्या है? जहाँ पर भावना प्रधान है, आपकी भावना, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा योगदान है. तो विच पाथ विल कम? भावना योग, भक्ति योग विल कम, कर्म योग विल कम, ज्ञान योग विल कम. सो बेसिकली दिस इज योगा. सो वी कांट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू bifurcate कि हठ योग है या क्रिया योग है, which योग. It is always a combination. It is actually a yogic practice. It is nothing more than that. So every path in of yoga, just take an example of your Ashtanga Yoga. It has got two parts. The first part is called external practice, Bahirang Yoga. Second is internal practice, Antarang Yoga. Bahirang Yoga वो practice हैं जो external practices हैं. यहाँ पर आप वो प्रैक्टिसेस करते हैं जो आपको भौतिक शरीर से आपको मजबूत करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है आपके इंटरनल प्रैक्टिसेस के लिए. उसके बाद आप अंतरंग योग करेंगे जहाँ पर आप धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे. ठीक है. तो यम नियम आप पहले करेंगे. तो यम नियम मानसिक, वाचिक, कायिक तीनों रूप से करेंगे. मानसिक, वाचिक, कायिक करने के बाद आप यम नियम के बाद आसन लगाएंगे. देन यू विल डू प्राणायाम, देन यू विल डू प्रत्याहार. नाउ प्रत्याहार इज ए ब्रिज बिटवीन Bahirang and Antarang. And then Antarang is your Dharana Dhyan Samadhi. So what is Dharana? Dharana is a Desh Bandh Chitta Shri Dharana. चित्त को एक देश में बांध देना या बांधना is called Dharana. What is Dhyan? Dhyan is continuous flow of thoughts towards one object, that object which you have already fixed. And then the Samadhi is where you are merged with that object. So this is Bahirang Yoga and this is Antarang Yoga. It is very important that you have to understand, if you say you are practitioner of yoga, Antarang Yoga has to be there, and Antarang Yoga is nothing but Kundalini Sadhana, because that is the practice of awakening. Now what is the aim of yoga? Aim क्या है? आप योग क्यों करते हैं? तो भौतिक, फिजिकल, प्राणिक, mental, intellectual and spiritual health. So all these 5 things are very important, and that is the reason you do this practice. Now when we talk about the definition, yogas chitta vritti nirodha. So when you do this, what happens? So Maharishi Patanjali says, when you practice this, what is the next result of that? Tada drushtu swarupe avasthanam. He says, then the seer is established in his own essential and fundamental nature. अपनी स्वरूप स्थिति में स्थापित हो जाना. जब आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो आप अपनी स्वरूप स्थिति में अवस्थित हो जाते हैं, आप अपने आप में पूरी तरह से डूब जाते हैं. And this particular sutra says that when all the modifications of the mind at all the levels have been completely inhibited, the seer established in his own swarupa, or in other words, attains self-realization.
आत्मज्ञान तभी तो होगा। और जब आप इस पोजीशन में नहीं रहते हैं तो फिर नेचुरली आपका जो भी आप जिस वृत्ति के साथ आप एसोसिएटेड हैं, जैसे नींद में हैं आप, तो वहाँ पर भी क्लेश अपना काम कर रहे होंगे, आप वहीं भटक रहे होंगे, तो आप दूर हैं वहाँ से, अपनी स्थिति में नहीं हैं, आप नींद में हैं, जो कि एक जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति जो वृत्तियाँ हैं, तो किसी भी एक वृत्ति में आप अगर अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर विद द क्लेशस एंड द प्रॉब्लम्स। तो आप वहाँ पर अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और वृत्तियाँ 5 तरह की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति जो है, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये वृत्तियाँ आपको दुख भी देती हैं, सुख भी देती हैं, दोनों चीज़ें देती हैं। तो प्रमाण क्या है? राइट नॉलेज है। फिर विपर्य रॉन्ग नॉलेज है। फिर विकल्प जो है फैंसी चीज़ें, इल्यूशनरी चीज़ें। विकल्प निद्रा, स्लीप, एंड स्मृति मेमोरी है। तो ये चीज़ें आपको कभी भी सही ज्ञान आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें आप हमेशा भटकते रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि हमारा मुख्य क्योंकि आप मेंटल मॉडिफिकेशंस तो हैं, उन मेंटल मॉडिफिकेशंस के साथ में क्लेश भी आ जाते हैं। अब क्लेश कौन से हैं? क्लेश वो हैं जो दुख का कारण बनते हैं। तो अविद्या सबसे बड़ा दुख का कारण है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये वो दुख का कारण है जो आपकी वृत्तियों के साथ हमेशा रहते हैं। तो आप इसी में हमेशा डूबे रहते हैं। अविद्या क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रियलिटी, मतलब सच्चाई को आप सच न माने। आपको पता है कि जो चीज़ आपकी नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती मान के बैठे हुए हो। आज तक आपके हाथ में नहीं आई, लेकिन फिर भी आप मान के बैठे हो कि आपकी है। कभी आएगी नहीं। ये जीवन भी हमारा अपना नहीं है। तो जब आप अविद्या में रहते हैं तो उस अविद्या के चलते एक अहंकार डेवलप होता है, और ऐसे लोगों की वाणी भी बदल जाती है। उनको लगता है वो अपने हिसाब से कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कार्मिकली जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो आपके कर्मों में जुड़ता जाता है। सामने वाला क्या कर रहा है वो अलग मैटर है। आपके रोने गाने से उसकी लाइफ पे कुछ नहीं हो रहा, बट आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपकी लाइफ पे उसका असर हो रहा है। तो जब आप इग्नोरेंट होंगे, अविद्या होगी, तो अहंकार को नरिशमेंट मिलेगा। अहंकार को नरिशमेंट मिलेगा, अहंकार बढ़ता जाएगा, तो फिर राग द्वेष अपने आप ही उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो राग द्वेष उत्पन्न होगा, और फिर अल्टीमेटली आप ग्रेटर रिफ्लेक्शंस जो होंगी, तकलीफ़ जो होंगी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर लाइफ की मुझे जीना है, और भले ही आप अंदर से कुछ भी ना हो, लेकिन आपके मन में एक मोह उत्पन्न हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, और अल्टीमेटली वो आपको किसी न किसी रूप में तकलीफ़ ही देगा। वो हम आगे समझेंगे। तो ये जो क्लेश हैं आपको बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, और यही क्लेश जब आप तोड़ते हैं, इनसे बाहर निकलते हैं, तो आप अपने स्वरूप स्थिति में स्थापित हो जाते हैं और आपको ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान होता है। तो इसीलिए अब जब भी आप देखेंगे कि आपका मन इन क्लेशों से युक्त है और तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं, तो क्या होगा? क्या चीज़ें मिलती हैं इसके चलते? तो जब आपका मन डिस्ट्रैक्टेड होगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? दुख हो सकता है, मेंटल पेन, मेंटल एगोनी हो सकती है, दौर्मनस्य, अंगमे जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेपः सब हुआ। तो ये विक्षेप जो हैं ये आपको तकलीफ़ देंगे, जिसमें मेंटल पेन है, डिस्पेयर है, नर्वसनेस है, पूरी शरीर में कपकपी होगी, आप बीमार पड़ जाएंगे सोच सोच के। सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट आप सोच सोच के बीमार आप पड़ रहे हो। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द बॉडी पार्ट्स, आपकी श्वास प्रश्वास जो ब्रीदिंग होगी वो हार्ड हो जाएगी, डीप हो जाएगी, शैलो हो जाएगी, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रैक्टेड माइंड। ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसका अर्थ है कि आप क्लेशों के इफ़ेक्ट में हैं और आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो अब हम आगे बढ़ें। अब देखिए, जब भी हम योग थेरेपी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए प्रत्याहार बहुत ज़रूरी है समझना। प्रत्याहार एक वो स्टेज है जहाँ पर हम आप विड्रॉल करते हैं अपने सेंसेस से, यानी कि जो हमारी इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हैं, अगर उनको भी एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, उनको भी कंट्रोल करके आप एक पॉइंट पे ले आते हैं, तब आपकी धारणा बन सकती है, तब आप ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए दोनों को प्रत्याहार को ब्रिज बोला गया।
क्योंकि अपने विषयों स्व विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारी इंद्रियाणाम प्रत्याहार। तो अपने विषयों से अगर उनको आप विमुख कर दो, आंखें देखती हैं, अगर आंखों को बंद कर लो और अंतर्मुखी हो जाओ, तो अंदर जो देखेंगी वो फिर वो रियलिटी होगी। तो एक एग्जाम्पल है, सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके, मन को कंट्रोल करके अपने आत्मा पे लगाओ तो आपको वहाँ कुछ मिल सकता है, क्योंकि वही सिर्फ आपके साथ जाने वाला है, यहाँ से बाकी कोई चीज़ नहीं जाने वाली। अब आप देखेंगे कि जब भी साधना में आप होते हैं तो राग द्वेष अभिनिवेश या ये जितनी भी चीज़ें अविद्या अस्मिता है, इन चीज़ों से आप दूर निकल जाते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें कुछ समय के लिए हैं, बाद में तो सब खत्म होना ही है। तो अब हम समझेंगे कि इतना कुछ समझने के बाद अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस नॉलेज को हम थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या योग को थेरेपी की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले योग थेरेपिस्ट जो थे संसार के, मुझे लगता है वो योग वाशिष्ठ जिन्होंने लिखा वो वही होंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को लिखा, ऑब्जर्व किया। तो योग वाशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण में बताया गया कि व्याधिस, व्याधि का अर्थ है एलिमेंट्स। व्हाट इज व्याधि? व्याधि मीन्स एलिमेंट और डिजीज। सो व्याधिस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज आधेजा व्याधिस, अनदर वन इज अनाधेजा व्याधिस. Adhija vyadhis are vyadhis which are originated by conflicts of mind. So Adhija vyadhis. And non-stress related diseases will come under Anadhija vyadhis. So now we will discuss about Adhija vyadhis. So Adhija vyadhis mein Sar and Samanya. So Sar is where karmic imprints are involved, and Samanya is totally psychological conditions or psychosomatic conditions. So we will discuss about the psychosomatic conditions only. Now what is अनाधिजा व्याधि? अनाधिजा व्याधि मीन्स वी ऑल नो कि बीमारी होने का कारण माइक्रोब्स भी हो सकते हैं. सो देर इज़ अ चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, देर इज़ अ चांस ऑफ इंजुरी, इन्फेक्शन. सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर अनाधिजा व्याधिस. एंड ड्यूरिंग दोज डेज our rishis were great Vedis also, so great physicians also, so they used to give medicines for that along with the yogic practices. So it was a combination, yoga was never alone. And yoga is not part of anything, everything is part of yoga basically, because if you talk about Prakriti, so first came Prakriti and in that Prakriti only everything is born. So nothing was different like what we see today. So now how this disease originates? तो देखिए, what we do, हम किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं. We start thinking about something, whether it is real or imagined, you start thinking about something. After that you start craving for it, there is a desire, आप उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हो. आप उसको पाने की कोशिश करते हो, उसके साथ आपका काम डेवलप होता है, infatuation डेवलप होता है. There is an infatuation towards that object, and when there is an infatuation, if you get it, you are happy. If you don't get it, you are angry. But in both the conditions, your mental status is disturbed. आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि राग द्वेष दोनों ही कंडीशन में मेंटल स्टेटस नॉर्मल नहीं रहता, डिस्टर्ब. ऐसे स्थिति में देयर इज ए लॉस ऑफ मेमोरी, योर नॉलेज, इग्नोरेंस वहाँ पर आपके ऊपर आ जाता है, जिसको हम आपसे अभी मैंने बताया कि अविद्या जो है वो हावी हो जाती है. आप भूल जाते हैं अपना स्वरूप जो है, एंड वो आपके मन को इफ़ेक्ट करता है. आप मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं और वो आपका पतन कर देती है. तो इस तरीके से हम अपना पतन करते हैं. तो योग थेरेपी जब हम बात करते हैं तो योग थेरेपी में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को हम अब कैसे बैलेंस करें. ठीक है, तो अब पतन हो चुका है, समझ में आ गया. तो अगर हमें इसको ठीक करना है, इस चीज़ को ठीक करना है योग के अनुसार, तो यहाँ पर भी पंचकोशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पंचकोशों के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे? डिस्ट्रक्शन जो होगा वो मानसिक भी होगा और भौतिक भी होगा. सो द डिस्ट्रक्शन पार्ट विल बी फॉर द माइंड ऑल्सो एंड फॉर द बॉडी ऑल्सो. बट द इमेजिनेशन इज टोटली ए मेंटल प्रैक्टिस. टू थिंक, टू एक्वायर और टू हैव ऑल दोज थिंग्स इज ए मेंटल प्रैक्टिस. चित्त में जो वृत्तियां हैं उन्हीं के चक्कर में ये सारी चीज़ें होंगी. सो मेंटली
you have a lot of fluctuations, desires, infatuations, attachment, all those things are there in your mind. Now you are suffering already. तो अगर उसको ठीक रखना है, इफ़ यू वांट टू करेक्ट इट, उसको ठीक करना है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप वो प्रैक्टिसेस करेंगे जो आपके चित्त को बैलेंस करें. द फर्स्ट थिंग इज़ इमोशनल कल्चर. आपको इमोशनल कल्चर बहुत ज़रूरी है. इमोशनल कल्चर कैसे करेंगे? द फर्स्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू विल स्टार्ट डूइंग भजन्स, सत्संग. देन ध्यान करेंगे आप. ध्यान में सबसे पहले चक्र साधना अगर आप सीख सकें तो, कर सकें तो. आपको नहीं पता है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको चक्र साधना करा सकते हैं और चक्र साधना के शिविर लगा सकते हैं जहाँ पर आपके साथ और लोगों का भी भला हो जाएगा. योग निद्रा करा सकते हैं, ध्यान के शिविर हम लगाते हैं, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं. तो आप चक्र साधना कीजिए, योग निद्रा कीजिए, या फिर आप ओमकार ध्यान कीजिए, या फिर आप यू कैन इवन डू दिस विपश्यना इफ़ यू नो. सो एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन कैन बी डन टू रिमूव ऑल दिस मेंटल मॉडिफिकेशंस. इन वृत्तियों के निरोध होने के लिए यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिसेस. बट ओनली मनोमय कोश को अगर आप वर्क करते रहेंगे और विज्ञानमय कोश के लिए कुछ नहीं करेंगे तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली. तो विज्ञानमय कोश से ही यहाँ पर आती ही बातें ना. तो अविद्या जो है आपके विज्ञानमय कोश का कंटेंट है, अज्ञान जो है. तो विज्ञानमय कोश में अज्ञान है, अहंकार भरा पड़ा हुआ है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी सब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है. तो अविद्या को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करेंगे. यू विल डू सेल्फ स्टडी ऑफ योर स्क्रिप्चर्स. आप सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय किस चीज़ का करेंगे? भगवत गीता का कर सकते हैं, रामायण का कर सकते हैं, आप योग दर्शन कर सकते हैं, उपनिषदों का कर सकते हैं, वेदों का कर सकते हैं. एंड विच एवर वे यू वांट, एनीथिंग विच कैन बी ए गाइडिंग सोर्स टू यू, यू कैन स्टडी दैट. देन टोटल सरेंडरेंस टू गॉड. अब यहाँ पर देखिए, अविद्या के चलते अस्मिता, अहंकारी तो आप बने पड़े हुए हैं. आपको लगता है आपकी बगैर दुनिया चलती नहीं और आप ही चला रहे हो दुनिया. आपके बिना कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, न था, न है, न होगा. लेकिन जब ये अहंकार तोड़ेंगे आप अपने ज्ञान से कि भाई आई एम टोटली सरेंडर्ड टू यू, वो कुछ भी हो सकता है. आप अपने गुरु को भी सरेंडर कर सकते हैं, भगवान को भी कर सकते हैं, किसी को भी. व्हेन यू सरेंडर you are free from all that tension, stress, all types of problems in your life. तो जैसे ही आप सरेंडर करते हैं तो you are free. और ये गाइडेंस और इसके साथ में सत्संग भी आप अटेंड कर सकते हैं ताकि आपके मन के लिए, बुद्धि के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे. तो इसके साथ में जब ये चीज़ें होंगी और फिर इनका इम्पैक्ट मन पे पड़ेगा और उसके साथ में ध्यान लगाएंगे तो दे बोथ विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. मन एक निरोधावस्था में होगा, बुद्धि भी बिल्कुल बैलेंस होगी, तो उसका इम्पैक्ट आपके प्राण पे पड़ेगा. आपके प्राण में आपकी प्राणवायु ठीक से फ्लो कर पाएगी, नाड़ियाँ बिल्कुल क्लियर रहेंगी, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, चक्र ठीक से रेडिएट कर पाएंगे, एनर्जी को ठीक से ऑब्जर्व रिलीज़ कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे. और फिर आपका भौतिक शरीर भी आसन, बंद मुद्राएं, षटकर्मों से शुद्ध रखेंगे आप तो बीमार नहीं पड़ सकते. सो you have to meditate at the mental level, pranic level you have to do pranayamas, and physical level you have to do asanas, bandhas and mudras and shatkarmas. जब आप इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे इन 3-4 लेवल्स पे तो आप ऑलरेडी आनंद में रहेंगे, क्योंकि आपको कोई बीमारी उस समय रहेगी नहीं. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि योग थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जो किसी भी और सिस्टम के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि सबसे पुराना सिस्टम है ये. क्योंकि योग और प्राकृतिक चिकित्सा से पुराना तो कुछ है नहीं. सबसे पहले तो प्रकृति है, उससे पहले तो कुछ था नहीं, और जब से प्रकृति है तब से योग भी है. बाकी चीज़ें बाद में धीरे धीरे आती गई, लेकिन सब अपना ही ज्ञान है. तो हमें ये समझना है कि इसको आप किसी भी सिस्टम के साथ जोड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं. कोई लड़ाई नहीं है कि इनके साथ नहीं करना है, इनके साथ नहीं करना है. बट इम्पॉर्टेंट है कि योग को प्रॉपर वैल्यू दें, क्योंकि सारे सिस्टम्स जो हैं वो आपके भौतिक शरीर को ट्रीट कर सकते हैं, सभी सिस्टम्स. लेकिन आपके प्राणिक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्राणायाम ही करना पड़ेगा. मेंटल बॉडी के लिए मनोमय कोश को जो भी मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई वो सिर्फ योग करवा सकता है आपसे. विज्ञानमय कोश में जो एक्टिविटीज़ आपको बताई वो भी सिर्फ योग करवा सकता है. इन पंच कोशों को बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ योग में है, किसी और जगह पे है ही नहीं. तो इन पंच कोशों पे अपने एग्जिस्टेंस को, अपने आप को अगर आप इन 5 लेयर्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो योग ही एक साधना है जिससे आप उसको रख सकते हैं. तो दोस्तों ये है प्रिंसिपल्स ऑफ योगा थेरेपी.
मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए, कोई डाउट है, कोई चीज़ है, या कोई कैंप या कोई शिविर लगाना चाहते हैं, योग से रिलेटेड हो या चक्रास से रिलेटेड हो या कोई और मेडिटेशन फॉर्म्स हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।